કેવળ આપણે વ્યક્તિ તરીકે જ નહીં, તો સમસ્ત જગતની સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ. એટલે પાર્શ્વભૂમિ તરીકે આ બધાનો વિચાર કર્યા પછી આજે બીજા દિવસે આપણે નિશ્ચિતપણે વિવાહ, વર અને વધુ અને વર અને વધુની જોડી કેવી રીતે બને છે એ મુખ્ય વિષય ઉપર, કેન્દ્રવર્તી વિષય ઉપર આવીએ છીએ. હમણાં બન્યાબેને આપણો વિષય કહ્યો अच्छे वर और अच्छे वधू बनने की पद्धति क्या है, कैसे बना जाता है. सारो वर કેવી રીતે બનાય અને સારી કન્યા કેવી રીતે બનાય, આ પહેલો પ્રશ્ન. અને પછી કેવા વર માટે કેવી કન્યા યોગ્ય કહેવાય ને કેવી કન્યા માટે કેવો વર યોગ્ય કહેવાય, જોડી બનાવવાની પદ્ધતિ આપણી પરંપરામાં, આપણા શાસ્ત્રોમાં કેવી રીતે કહી છે, આ બે વિષયનો આપણે અત્યારે જાણવાના છીએ. ગઈકાલે બધાને જ કુતૂહલ જન્માવે અને જરા આનો જવાબ મળવો જોઈએ એવું કહેનારો પ્રશ્ન તો લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટનો. મને લાગે છે કે કોઈ વિચાર તો કર્યો હશે. ગૃહપાઠ કરવાની આદત છે, કોલેજમાં તો ના હોય, પણ કરીને કેટલે સુધી પહોંચ્યા હશો એનું મને પણ વિસ્મય છે. સારો વર અને સારી વધુ બનવાની પ્રક્રિયામાં આ વિષયનું પણ એટલું મહત્વ છે. પણ એ જરા થોડો ગૂઢ વિષય, ગૂઢ એટલે થોડો અટપટો પણ ન કહેવાય ને, ગંભીર વિષય છે. અને કદાચ આજના જમાનામાં એ શક્ય જ નથી એવું આપણને લાગે એવી આપણી બધી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવાયેલી છે. તેમ છતાં આપણે થોડો વિચાર તો કરીએ. આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા, એનાથી આપણે બહારના જગતના સંપર્કમાં આવીએ છીએ. એટલે મારી આંખોને બહારનું દેખાય છે, મારા કાનને બહારની દુનિયા સંભળાય છે, દુનિયામાં શું અવાજ થાય છે બધા સંભળાય છે, આજુબાજુ રંગોની રૂપની કેવી દુનિયા વિસ્તરેલી છે એ મારી આંખો મને કહે છે. મારા હાથને આ બધા મુલાયમ, કઠોર એવા સ્પર્શ થાય છે. મારી નાકને આજુબાજુ સુગંધ અને દુર્ગંધની જે દુનિયા છે એનો અનુભવ થાય છે. મારી જીભને વિવિધ પ્રકારના રસો અને સ્વાદોનો અનુભવ થાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો બહારના જગતમાંથી આપણને સંવેદન રૂપે અનુભવ કરાવે છે. બીજી વ્યક્તિઓના સંપર્કમાં, બીજા પ્રાણીઓ, વૃક્ષ, વનસ્પતિના સંપર્કમાં પણ આપણે આ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના માધ્યમથી જ આવીએ છીએ. એમાંથી દ્રશ્યેન્દ્રિયની વાત કરીએ તો આપણને સામેની વ્યક્તિને જોવા, જાણવા માટેનું, ઓળખવા માટેનું સાધન એ આપણી આંખ હોય છે. ક્યારેક કહીએ છીએ જૂઠું બોલતા હોઈએ તો કોઈની સાથે આંખ મિલાવીને નથી બોલી શકતા. મારી સામું જોઈને બોલ જરા, એમ આપણી મમ્મીએ ઘણી વખત આપણને કહ્યું, સામું જોઈને બોલ. નહીં, શરમની વાત હોય, છુપાવવાની વાત હોય, ખોટું બોલવાની વાત હોય, કપટ કરવાની વાત હોય તો આપણે આડું તેડું જોઈને બોલીએ છીએ. કેમ? આંખ મિલાવીને જોઈએ તો સમજ પડી જાય છે કે આ સાચું બોલે છે કે ખોટું બોલે છે. આંખમાં એ પારખવાની શક્તિ છે. કેવી? કારણ આંખોની પાછળ પ્રાણ સંકળાયેલા છે. પ્રાણની પાછળ મન છે, મનની પાછળ હૃદય છે. એકના હૃદયથી બીજાના હૃદય સુધી પહોંચવાનો માર્ગ હૃદય, મન, પ્રાણ અને આંખોથી સામેની વ્યક્તિની આંખો, પ્રાણ, મન અને હૃદય સુધી જવાનું હોય છે. એટલે એકબીજાને જાણવા, સમજવા, ઓળખવાનો બહુ જ અક્ષીર માર્ગ દ્રષ્ટિનો છે. આટલે સુધી તો તમે સમજો છો. હવે વિવાહની વિધિની વાત કરીએ અને આપણી
કન્યાને વર ગોતવાની પરંપરાની વાત કરીએ તો આજથી લગભગ 3-4 પેઢી કે 100 વર્ષ પહેલા સુધી છોકરીને માટે વર શોધવાનું હોય તો છોકરી તો શોધવા જતી જ નહોતી, પણ છોકરીના મા બાપ નહીં જોતા નહોતા. કેટલીક વખત ગોર મહારાજને કહેવામાં આવતું કે અમારા દીકરા માટે દીકરી શોધી કાઢો, એટલે કે છોકરી શોધી કાઢો, મારી છોકરી માટે છોકરો શોધી કાઢો. નરસિંહ મહેતાની બાબતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે શામળ શાહ કેવી રીતે પસંદ થયા હતા? દીકરીના કુળના ગોર મહારાજ જૂનાગઢમાં આવ્યા હતા અને એ યોગ્ય વરની શોધમાં હતા પોતાના જજમાનની દીકરી માટે. એમ જ શોધાતા હતા. તો એવી રીતે ગોર મહારાજ ઉપર કે આપણા કોઈ સ્નેહી ઉપર કે આપણા કોઈ વડીલ ઉપર, કુટુંબના વડીલ ઉપર એટલો વિશ્વાસ હતો, એટલી શ્રદ્ધા હતી કે એને જ એ કામ સોંપવામાં આવતું અને એ પોતાના જજમાનની દીકરી માટે વર શોધી લાવતા કે પોતાના જજમાનના દીકરા માટે કન્યા શોધી લાવતા અને આવીને માતા પિતાને કહેતા કે કન્યાના કે વરના કે તમારી દીકરી માટે અથવા તમારા દીકરા માટે ઉત્તમ કન્યા અથવા વરને હું શોધી લાવ્યો છું. અને પછી એના ગુણોનું વર્ણન કરતા. એ ગુણોનું વર્ણન પેલી દીકરી અથવા દીકરો ક્યાંક છુપાઈને સાંભળતા. અને ત્યારથી એની કલ્પનામાં આવું વર, આવી બહુ એની કલ્પનાઓ થતી. જોઈ તો નથી, જાણી પણ નથી, અને છતાં એક ક્ષણથી મારું વર અને મારી આવું થતું એ વખતે પણ. તો ત્યારથી શરૂ થઈ જતી યાત્રા. લગ્ન નક્કી થઈ જાય, તિથિ નક્કી થાય, ઘોડીએ ચડીને વર આવે અથવા જાય કન્યાને માનવે, ત્યારે સ્વાગત કરવા માટે કન્યાની માતા આવે. આજની જેમ નહીં કન્યા જ સ્વાગત કરવા માટે જાય. એ કન્યા આજ છે ને એ બધી વાત કન્યા વરમાળા લઈને સ્વાગત કરવા માટે જાય છે. આપણે ત્યાં એને હોતું છે કે છીછરા કરવું કહેવાય, ન જવાય. જ્યાં સુધી લગ્ન નથી થયા ત્યાં સુધી ન જવાય એવા બંધનો હતા. એ સંસ્કારના સંસ્કૃતિના તો હતા, પણ હું આગળ જે વાત કહું છું એ પણ સાંભળો. તો આવે લગ્નના મંડપમાં પોતાના સ્થાને વર અને કન્યા બંને ઊભા રહે ત્યારે વચ્ચે શું હોય? અંતરપદ. બોલાય પ્રશ્નોના પૂછેલાના જવાબ અપાય. તો અંતરપદ હોય. એનો અર્થ શું? ચહેરો જોવા મળતો નથી. હજી સુધી બંને એકબીજાને જોયા નથી, છતાં મનમાં પાક્કું થઈ ગયું છે કે આ સામે ઊભો છે એ વર છે, સામે ઊભી છે એ વહુ છે. એવું પાક્કું છે, પણ જોયા નથી. પછી શું થાય છે? મંગલાષ્ટકોનું ગાન થાય છે. ક્યાં સુધી? લગ્નનું મુહૂર્ત ન આવે ત્યાં સુધી. મુહૂર્ત શેના આધારે નક્કી થાય છે? જન્મપત્રિકાના આધારે. બંનેની જન્મપત્રિકા મળે એના આધારે મુહૂર્ત નક્કી થાય છે. એ મુહૂર્તે આકાશના ગ્રહો, નક્ષત્રો એ બધા જ અનુકૂળ છે, એ બધાની સાક્ષી છે. અને સમાજના સ્નેહી બાંધવો, સગાઓ આ બધાની ઉપસ્થિતિ છે, અગ્નિની સાક્ષી છે. ત્યારે એ મુહૂર્ત આવે છે. ત્યારે તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલમ ચંદ્રબલમ તદેવ
પહેલું શું કે છે? જોયા છે લગ્ન? ધ્યાન આપ્યું છે કદી? પહેલું શું કે છે? વર અને કન્યા એકબીજાની સામે જુઓ, એકબીજાને દ્રષ્ટિથી ઓળખો, એ દ્રષ્ટિની પાછળ રહેલા પ્રાણ સાથે સંધાન કરો, એ પાછળ રહેલા મનને જાણો અને એ પાછળ રહેલા હૃદય સુધી સંધાન કરો. એ એનો સંકેત છે, એ એનો અર્થ છે. આજ સુધી કોઈ આજ સુધી આકૃતિ જોઈ નથી, આજ સુધી રંગરૂપ જાણ્યા નથી એવી વ્યક્તિ, સર્વથા અપરિચિત, સર્વથા પારકી વ્યક્તિ સૌથી પોતાની બની જાય છે. શેને કારણે? એકબીજાની સામે જોતા એ વ્યક્તિ પોતાની બની જાય છે. એટલે શું? જગતમાં સૌથી વધારે પ્રિય બની જાય છે. આને કહેવાય પહેલી દ્રષ્ટિએ પ્રેમ. આજકાલનો નહીં, આને તો આપણે જોયા અને ગાડા થઈ ગયા. એને થોડું પહેલી નજરે પ્રેમ, એ પહેલી નજર પહેલા તો હજારો વખત જોયેલું છે. અને શાને આપણે પહેલી નજરે પ્રેમ, પહેલી નજરે પ્રેમ? કપાળનું પહેલી નજરે પ્રેમ. નજરે નથી હોતી ને પ્રેમ નથી હોતો. આપણે તો આમ કંઈક આમ રમકડાને ભગવાન માનતા હોઈએ એને જેવું છે. આ એની પાછળની દ્રષ્ટિ છે. અને એટલા માટે એક કથન ઉપર વિચાર કરો. પ્રિય છે માટે પતિ છે કે પતિ છે માટે પ્રિય છે? પ્રિય છે માટે પત્ની છે કે પત્ની છે માટે પ્રિય છે? આપણે કે ના, આવી છે આવી છે આવી છે એટલે મને ગમે છે. આવો છે રૂપાળો છે ને બહુ પૈસા કમાતો છે ને સમાજમાં માન પ્રતિષ્ઠા છે ને પરાક્રમી છે ને બહુ જ ભણેલો છે એટલે મને ગમે છે? નો. ગમે છે એક મહત્વની વસ્તુ છે. કેમ ગમે છે? રૂપાળો છે માટે નહીં. કેમ ગમે છે? પૈસા વાળો છે માટે નહીં. કેમ ગમે છે? બહુ ભણેલો છે માટે નહીં. કેમ ગમે છે? પ્રધાનમંત્રી બનવાની એની શક્તિ છે એટલે નહીં. કેમ ગમે છે? મારું ઘર છે એટલે ગમે છે. કેમ ગમે છે? મારી પત્ની છે માટે ગમે છે. કોઈ કારણ નહીં કીધું ને, કોઈ કારણ હોતું નથી. આ એક જ માત્ર કારણ છે. અને એ પતિ અને પત્ની બનવા માટેની પહેલી કડી છે દ્રષ્ટિ. એટલા માટે એને પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પ્રેમ કહ્યો છે. આપણી લગ્નની વિધિમાં પણ પહેલું એક છે. આપણા પૂર્વજો એ જાણતા હતા. હવે આને તમે મનોવિજ્ઞાન કહો કે વિજ્ઞાન કહો? મનોવિજ્ઞાન તો વિજ્ઞાન જ છે ને. તો પ્રેમ એ કઈ પ્રેમ એ કઈ પૈસાનો ને પથ્થરનો ને પાણીનો ને કપડાનો ને એ થોડો હોય છે, એ તો હૃદયનો હોય છે. એટલે એ મનોવૈજ્ઞાનિક છે. પણ વિજ્ઞાન, જેને તમે વિજ્ઞાન કરો છો એના કરતા તો કઈ કેટલું શ્રેષ્ઠ છે, કેટલું ઉપર છે ને માણસને લાગુ પડે છે. પ્રાણીઓને પશુઓને લાગુ પડતું નથી, માણસને લાગુ પડે છે. એની પાછળનું રહસ્ય છે. હવે બીજો એનો મુદ્દો, જે ઇન્દ્રિયોના અનુભવોને આપણે વીખી નાખ્યા નથી, જેને વેરી નાખ્યા નથી, જેને વેરણ છેરણ કરી નાખ્યા નથી, પણ આમ કેન્દ્રિત કરી રાખ્યા છે, કોન્સન્ટ્રેટ કરી રાખ્યા છે. એની શક્તિ વધારે હોય છે, એની શક્તિ વધારે, એનું સામર્થ્ય વધારે હોય છે. દાખલા તરીકે ગમે તેટલા સ્વાદિષ્ટ વ્યંજનો હોય, પણ ભૂખ ન હોય
સંતોષ થાય છે, ખાવાનું મન થાય છે? ના. તો પછી સંતુષ્ટિ શામાં છે, કે સ્વાદ શેમાં છે? ખાવાના પદાર્થમાં કે ભૂખમાં? ભૂખમાં છે, ખાવાના પદાર્થમાં નથી. ભૂખ લાગી છે ને ખાઈએ છીએ, પણ પેટની પાચન શક્તિ નથી, તો શું થશે? તો એનાથી ગુણ નહીં આવે, એનાથી સ્વાસ્થ્ય નહીં જળવાય, એને પોષણ પણ નહીં મળે અને મજા પણ નહીં આવે. પણ કડક ઉપવાસ કરો, 1 દિવસ 2 દિવસ કડક ઉપવાસ કરો, કશું ન ખાઓ. આપણે કહીએ છીએ એવા એકાદશીના ઉપવાસ નહીં કે આપણ ખાધું ને આપણ ખાધું ને આપણ ખાધું, એમ નહીં. અનશન જેને કહેવાય, નહીં ખાવાનું, એવા ભૂખ્યા રહેવાના ઉપવાસ કરો અને પાચન તંત્ર પૂર્ણપણે શુદ્ધ બનાવો, ચોખ્ખું બનાવો. અને પછી મસ્ત ભૂખ લાગી છે, હવે પેટ પણ માગે છે, પ્રાણ પણ માગે છે, મન પણ માગે છે, શરીર આખું માગે છે કે હવે ખાવાનું જોઈએ, ખાવાનું જોઈએ. એ વખતે કોઈકનો આમ મધુર અવાજ સંભળાય છે, હા, આજ તો બેન માટે શીરો બનાવીએ. એટલે શીરો સામે ન આવે તો પણ શું થાય? હા, શરૂ થઈને તૃપ્તિની શરૂઆત થાય છે, સંતુષ્ટિની શરૂઆત થાય છે, સુખની શરૂઆત થાય છે, રસની શરૂઆત થાય છે. કોનો અવાજ છે? મમ્મીનો. પહેલું કોનું નામ પડ્યું? શીરાનું. ભાઈ, મને ખબર નથી તમને શીરો ન ભાવતો હોય તો નહીં થાય, પણ ભાવતો હોય તો થાય. કોઈ પણ ભાવતી વસ્તુનું નામ મનમાં લાવી દો. તો મમ્મીનો અવાજ, સુગંધ આવી, સામે થાળીમાં આવી, જોઈને મજા આવી અને છેલ્લે ખાધી. એનાથી જે સ્વાદ આવે છે, એનાથી જે સુખ મળે છે, એનાથી જે તૃપ્તિ થાય છે, એ શીરાની છે કે પેટની છે કે જીભની છે? શેમાં છે? એનું સુખ શેમાં છે? ભૂખમાં છે, ઉપવાસમાં છે, પાચન તંત્રની શુદ્ધિમાં છે, પચાવવાની શક્તિમાં છે, બનાવનારની ભાવનામાં છે, આપણો એ બનાવનાર સાથે જે સંબંધ છે એમાં છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વધી, જીભની સ્વાદ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ વધી. સ્વાદ જીભમાં છે, સ્વાદ પ્રાણમાં છે, સ્વાદ પાચન તંત્રમાં છે, સ્વાદ મસાલેદાર ખોરાકમાં નથી. એવી સ્થિતિમાં સૂકો રોટલો પણ ગમે તેવા જગતના મિષ્ટાન કરતાં પણ વધારે મીઠો લાગે છે. કહેવાનો તાત્પર્ય શું? કે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શક્તિ વધારવાથી સુખની માત્રા વધે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયોને શુદ્ધ બનાવવાથી અનુભવ સંપાદન વધારે સમૃદ્ધ બને છે. અને પ્રેમ એ વિવાહનું જો મુખ્ય કેન્દ્રવર્તી સૂત્ર હોય તો પછી શરૂઆત જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી સામેની વ્યક્તિને આપણા હૃદય સુધી પહોંચાડવાનું અને આપણને એના હૃદય સુધી પહોંચાડવાનું મુખ્ય સાધન છે. પહેલો છે દ્રષ્ટિ અને બીજો છે સ્પર્શ. જમણા હાથની હથેળીનો સ્પર્શ જરાક શું પ્રભાવ નિર્માણ કરે છે. જો કોઈકના માથે હાથ મૂકીએ છીએ, હથેળી, આશીર્વાદ આપીએ છીએ. કોઈની પીઠે હાથ પસારીએ છીએ તો સાંત્વના અને આશ્વાસન આપીએ છીએ. કોઈકને ખભે હાથ મૂકીએ છીએ અને મિત્રતા, સ્નેહ અને
ભરોસો વ્યક્ત થાય છે. કોઈના પગે હાથ મૂકીએ તો આપણે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એ સ્પર્શથી હૃદયની અનુભૂતિ થાય છે. હું કહું છું એ બરાબર છે? આટલું મેં કહ્યું એ બરાબર છે? વિવાહ માટે એ જોઈએ. એને કહેવાય પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પ્રેમ, પ્રથમ સ્પર્શથી પ્રેમ, અને એમાંથી નિપજતો વિવાહનો સંબંધ. એવા આપણે બનીએ એવી અપેક્ષા છે. કોની? આપણા કુટુંબની, આપણા પરિવારની. જ્યાં આવી રીતે વિવાહ થતા હોય એ ઘરમાં નંદનવનનું સુખ હોય, આપણે માટે પણ અને બધાને માટે પણ. એટલે એવા સંબંધની અપેક્ષા આપણા આખા કુટુંબને છે. એવા સંબંધથી જન્મતા બાળકો નવી પેઢીનું સાચું સંસ્કારમય નિર્માણ કરવું છે. એવા પ્રેમથી આસપાસના લોકો સુધી એના જ તરંગો પહોંચે છે અને સુખ અને આનંદનો વિસ્તાર થાય છે. એવા જ સંબંધથી વૃક્ષ, વનસ્પતિ વગેરે સાથે આપણો સંબંધ બંધાય છે. ત્યારે આ બધા વૃક્ષો અને લતાઓ મારા ભાઈ બહેનો છે એવું આપણને લાગે છે. શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? શુભ મુહૂર્તે એકબીજાની સામે જુઓ ત્યારથી. એટલે આપણી જે વિવાહની વિધિ છે એ પહેલાં એકબીજાની સામે જુઓ, પછી એકબીજાનું પાણી ગ્રહણ કરો. એ છે ને બીજા નંબરે એ આવે છે કે નહીં? પણ પહેલાં દ્રષ્ટિ મળી અને માળા આરોપિત થઈ ગઈ. તરત જ થાય છે કે નહીં? તરત જ માળા આરોપિત થઈ ગઈ. એટલે એકબીજાનો સ્વીકાર થઈ ગયો અને પછી પાણી ગ્રહણ કરો. એટલે બીજા નંબરે આવે હાથ, અને પછી સાથે ચાલો. ક્યારેક વર આગળ અને કન્યા પાછળ, ક્યારેક કન્યા આગળ અને વર પાછળ. બંને સરખું જ છે. અને એમ સહજીવનની યાત્રા શરૂ થાય છે. અહીં સુધી પહોંચવા માટે વર અને કન્યા બંનેએ પોતપોતાની તૈયારી કરવાની છે. એ કઈ એક રાતમાં આવું આવી જતું નથી. કઈ આપણે લગ્ન નક્કી થાય અને પછી આવી રીતે આપણું માનસ થઈ જાય એવું થતું નથી. એને માટે સંપૂર્ણ યુવાવસ્થામાં તૈયારી કરવાની છે. એ કેવી તૈયારી છે? એટલે કે સારું વર કેમ બનાય, સારી કન્યા કેમ બનાય, એને માટે બહુ સીધા સારા નિયમો છે. કે બહુ મોટા મોટા અઘરા એવા નિયમો નથી. આપણે એને અઘરાની અશક્ય બનાવી દીધા છે. એ તો આપણી અણસમજને કારણે અને અજ્ઞાનને કારણે, અને કોઈ આપણને કશું કહેતું નથી અને બતાવતું નથી એને કારણે. બાકી તો બધા સીધા સારા છે. પહેલી વાત, આજની સમસ્યા જે અનેક જેનેટિક સાયન્સના રિસર્ચરોએ કહી છે એ છે કે આજના યુવાનો અને યુવતીઓ, કદાચ તમારી કોલેજમાં આવી ત્યારે પણ મેં આ વાત કરી હતી, ફર્ટિલિટી કાઉન્ટ ડેન્જરસલી ઓછો થતો જાય છે. એનું પરિણામ ત્રણ સૂત્રોમાં અપાય. એના કારણો પણ ત્રણ છે. એનું પરિણામ શું છે? એ બાળકોને જન્મ આપવાને સમર્થ જ નથી. બીજું, બાળકોને જન્મ આપે કદાચ તો ફ્રોમ ડે 1 કષ્ટમય સગર્ભાવસ્થા જાય છે. અને ત્રીજું, જન્મ આપે તો શારીરિક માનસિક રીતે નબળા બાળકોને જન્મ આપે છે. એટલે જેને જન્મ આપે છે એ બાળકોનું આખું જીવન બિચારા નબળા ને નબળા જ રહે છે. આ તો એનું પરિણામ છે. પણ કારણ શું? એ તરફ વધારે ધ્યાન આપો, કારણ કે એવા કારણો આપણે ઉદ્ભવવા જ દેવા નથી. અને એવા કારણો હોય તો આપણે દૂર કરવા છે. પહેલું, ગઈકાલે બંને સત્રોમાં કદાચ વાત થઈ હતી, આજની છોકરીઓ છોકરાઓ જેવી અને છોકરાઓ છોકરીઓ જેવા
જેવા થતા જાય છે. બહુ વિસ્તારથી કહેવાની કંઈ જરૂર નથી. આપણને બધાને પોતાના અનુભવથી ખબર છે કે આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ. ન કરો. શા માટે કરવું જોઈએ? છોકરીઓએ છોકરા જેવા થવાથી છોકરીઓ છોકરાઓ થઈ જતા નથી, અને છોકરાઓ છોકરીઓ જેવું કરવા માંડે એટલે કે છોકરીઓ થઈ જતી નથી. પણ ભાઈડા છોકરીઓ અને બાયડા છોકરાઓ એવા બને તો એમાંથી સમાજનું કંઈ ભલું ન થાય, આપણું પણ જીવન કંઈ ભલું ન થાય આપણું. એટલે પહેલાં છોકરાએ છોકરા જેવા અને છોકરીઓએ છોકરી જેવા જ થવું જોઈએ. કોઈ બીજાના જેવું બનવાની આકાંક્ષા ન રાખવી જોઈએ, ધખારા ન કરવા જોઈએ. પણ બીજું મહત્વનું જેનું કારણ છે ગમે તે ખાવું. ગઈકાલે પણ આહારની વાત થઈ હતી. ગમે ત્યારે ગમે તેવું કોઈએ પણ બનાવેલું ખાવાથી છેવટે આપણું સ્ત્રીત્વ અને પુરુષત્વ જ ક્ષીણ થાય છે, સામર્થ્ય ઓછું થાય છે. શા માટે ખાવાનું? તો પછી વાત ભાવે છે એટલે જો ત્યારે ભાવે છે એની કિંમત શું ચૂકવી આપણે? ખાલી મોંઘી પૈસાની મોંઘી મળી એવું નહીં, આપણું સામર્થ્ય દાવ પર લગાવી દીધું, આપણી શક્તિ દાવ પર લગાવી દીધી, આપણું આગળનું જીવન દાવ પર લગાવી દીધું. એટલે આ અવસ્થા જે સાધનામય યુવાવસ્થા છે, ખાવાનો સંયમ કરાય કે ન કરાય? કોના કહેવાથી કરીએ? મમ્મી પપ્પા ચોકી રાખે, ચોકી પહેરો રાખે ત્યારે ન ખાઈએ? શું પાછળ પોલીસ હોય ત્યારે ન ખાઈએ? કે આપણા જ નિશ્ચયથી ન ખાઈએ? આપણે આપણું વ્યક્તિત્વ જાળવવું છે માટે ન ખાઈએ. એ ખાવાથી આપણી શક્તિઓ બધી ક્ષીણ થઈ જશે, એટલું બધું નુકસાન આપણને પરવડે એમ નથી, એટલે ન ખાઈએ. ખાવાનું તે જ ખાઈએ અને ન ખાવાનું ન ખાઈએ એ તો 10 વર્ષના બાળકને સમજણ પડે એવી વાત છે. સમજણ તો પડે છે, પણ આપણે મનને એવું કેળવ્યું નથી કે જેની સમજણ પડે છે એ પણ કરીએ નહીં. તો બીજું તો એ છે આહાર, ખાવાના પ્રત્યે ધ્યાન આપવું. સાત્વિક અને પૌષ્ટિક. સાત્વિક અને પૌષ્ટિક અત્યંત સ્વાદિષ્ટ હોય એ તો ભોજન બનાવનારની કળા છે, કુશળતા છે. આપણે કે સાત્વિક એ સાધુબાઓ જેવું ખાવું ને રોગી જેવું ખાવું એવું નથી. સાત્વિક અને પૌષ્ટિક પણ અત્યંત સ્વાદિષ્ટ, વિવિધતાવાળું, એકદમ મનને પ્રસન્ન કરી દે એવું ભોજન બને છે. તો બનાવતા શીખો. આ ઉંમર છે, ભોજન બનાવતા આવડવું જ જોઈએ. ભોજન બનાવતા શીખો. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આજકાલની ભણતી યુવતીઓ એમ કે અમે નોકરી ન કરીએ, ઘરમાં બેસીને કંઈ રાંધણું કરીએ. રાંધણું કરવું એ જગતનું શ્રેષ્ઠ કામ છે. શા માટે? પણ બંનેને હોવું જોઈએ, પણ બનાવવાનું કામ તો યુવતીઓએ જ કરવું જોઈએ. ખાવાનું કામ યુવકોએ જરૂર કરવું જોઈએ, પણ ખાતી વખતે બનાવનારની કદર જાણવી જોઈએ અને શું ખાઈએ છીએ એની સમજણ પણ હોવી જોઈએ. તો ગમે તે ખાવું, એમાંથી બચવાની બહુ જરૂર છે. તો ઇન્દ્રિયોની અને શરીરની શક્તિ અને સામર્થ્ય જળવાઈ રહેશે. ત્રીજું કારણ છે ગમે તે જોવું. વિડીયો, ટીવી અને ઇન્ટરનેટ, મોબાઈલ જે જોઈએ છીએ એ અત્યંત આપણી મનની શક્તિઓનું પણ ક્ષરણ કરે. આપણી સંવેદનાઓ નષ્ટ થઈ જાય, જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શક્તિઓ ક્ષીણ થાય, અને જે દ્રષ્ટિથી આપણે બીજાને જીતવાના છીએ અને બીજાના થવાના છીએ એ દ્રષ્ટિ આપણી દૂષિત થઈ જાય છે. મન દૂષિત થઈ જાય છે. મોબાઈલ અને ઇન્ટરનેટના ઉપયોગ ઉપર સંયમ રાખવો કોણ આપણને કરાવી શકે એમ છે? આપણા પોતાના સામર્થ્યથી રાખીએ તો. બાકી કોઈ શું કરવા આપણને કે ન કરશો? કોઈ શું કરવા આપણને આપણા ઉપર ચોકી પહેરો રાખે? અને આપણે ન માનવાનું
એના ઉપર સંયમ અનિવાર્ય છે. આમાં કોઈ શિથિલતા, કોઈ ઢીલાપણું છે નહીં. અને આ બધું આપણે જાતે કરવાનું છે. કોઈ આપણે માટે કશું કરી નહીં શકે. યુવાન છીએ ને, સ્વતંત્ર છીએ ને, મારી મરજીમાં આવે તે કરીશ ને, બહુ મોટો સ્વતંત્રતાનો અવર્ગો છે ને. કરી બતાવો સંયમ, કરી બતાવો મનનો નિશ્ચય કે નહીં વાપરીએ, અમે નહીં જોઈએ, આ કશું જ નહીં જોઈએ. કેમ? અમારે સારા થવું છે, અમારે સારી કન્યાને સારા વર થવું છે. એટલા માટે મારા હાથમાં છે એ થવું કે ન થવું તે. બગડવું પણ મારા હાથમાં છે, સુધરવું પણ મારા હાથમાં છે. મારા નિશ્ચયથી હું સુધરીશ કે બગડીશ આપણે જ નક્કી કરવાનું છે. સ્વતંત્રતાનું એ જવાબદારી છે. આપણે સ્વતંત્ર છીએ ને, તો સારા બનવાની જવાબદારી છે, યોગ્ય બનવાની જવાબદારી છે, ઉપયોગી બનવાની જવાબદારી છે. અને આપણા પોતાના સુખ માટે તેને આ કરવાની જરૂર છે. એને કહેવાય બ્રહ્મચર્ય, એને કહેવાય સાધના, એને કહેવાય સંયમ. સહેલું નથી, એ વાત તો સાચી છે. હા, સામે બધા લોકો આટલા મસાલેદાર વિભિન્ન પદાર્થો ખાતા હોય અને આપણે કહે ના, હું તો નહીં ખાઉં. એ સહેલું તો નથી, બરાબર છે. પણ કંઈ સહેલું હોય એ જ બધું કરવું એવો નિયમ છે નહીં. અઘરું હોય તોય કરવું, આપણી મરજીથી કરવું, આપણા નિશ્ચયથી કરવું. તો ત્રીજું સૂત્ર હતું ગમે તે જોવામાંથી બચો. તો આ ન જોવું, ન ખાવું, ન શૃંગાર કરવા, ન છોકરાઓ જેવા થવું, આ તો બધું ન આવ્યું. હવે હાનું શું આવે? યુવાનો માટે વ્યાયામ, શ્રમ, આ બે અત્યંત અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક છે. અખાડામાં નહીં જાઓ તો માંદલા જ થવાના છો, અને માંદલા જ થશો તો ગમે તેવી નમારી પ્રજાના બાપ થવાના છે. કસરત કરો, વ્યાયામ કરો, શ્રમ કરો. લાકડા ફાડતા આવડવા જોઈએ, મહેનતના કામો કરતા આવડવા જોઈએ. મેદાનમાં રમવું જોઈએ, તો કબડ્ડી રમો, ફૂટબોલ રમો. પરસેવાથી લથપથ થવું એ શરીરને શુદ્ધ કરવાનું, શક્તિમાન બનાવવા માટેનું સાધન છે. માંદલા લેવું એ કઈ યુવાનોને શોધતો હશે. એટલે વ્યાયામ અને પરિશ્રમ અત્યંત આવશ્યક છે. એ જ રીતે યોગના આસન અને પ્રાણાયામ, આ બે અત્યંત મહત્વના છે. એ તો છોકરાઓ છોકરીઓ બંને કરવા જોઈએ, પોતાને માટે થઈને. તો એને માટે સમય કાઢો, એને માટે મોબાઈલથી દૂર રહેવું પડે તો રહો, એને માટે ભણવાનું ઓછું કરવું પડે તો કરો, બીજી બધી ફાલતુ વાતો ઓછી કરવી પડે તો કરો. પણ વ્યાયામ, શ્રમ, રમતો, અંગ મહેનતના કામો, આસન, પ્રાણાયામ આ કરવું જ જોઈએ. છોકરીઓ માટે કંઈ અખાડામાં જવાનું નથી. છોકરીઓએ ઘરના કામો કરવા જોઈએ. જરા કુકડા જેવી બેઠકથી પોતું કરો ઘરમાં, એના જેવો કોઈ વ્યાયામ નથી. કરો, હે પોતું તો કરતું હશે, રોમાંચ લાગ્યા. બીજો એનો કોઈ બીજો વિકલ્પ છે જ નહીં. પોતું કરો, કપડાં ધુઓ અને પથ્થર ઉપર ચટણી વાળો, મિક્સર જવા દો અને છાશ વલવો, ઘંટીએ દળો. પારો અને પેલા એનાથી ખાંડો, લીપો, લીપીને રંગોળી બનાવો. આ બધો જ વ્યાયામ તો છે જ. શરીરને અત્યંત સુડોળ બનાવવા માટેના સાધનો છે. એક પણ પૈસો એને માટે ખર્ચવો ન પડે, અને એવા કામો માટે બીજાને પૈસા આપવા પણ ન પડે, અને એ જ પૈસા સારા કામમાં વાપરી પણ શકાય. બુદ્ધિમાની તો એમાં જ છે. પૈસા ખર્ચા વગર આપણું શરીર સુડોળ બને છે. પૈસા ખર્ચા વગર આપણું ઘર ચોખ્ખું બને છે, અને
અને આપણને કામ કરતા આવડે છે અને આપણે જરા ઘરના થઈએ છીએ. નહીં તો ઘરના કામો મારા નહીં એમ કહેનારા ઘર કેવી રીતે બનાવે, ઘર કેવી રીતે વસાવે. એટલે છોકરીઓ માટે વ્યાયામ એ ઘરના કામોમાંથી ગોતવો જોઈએ. આગળ જતાં જે પ્રસૂતિ તંત્રના નિષ્ણાતો છે એ કહે છે કે નોર્મલ ડિલિવરી માટે, સુખ પ્રસૂતિ માટે 2 જ વ્યાયામ, અક્ષિત વ્યાયામ છે. ઘંટીએ દળો અને ઊભા રહીને વલોણું કરવું. અત્યંત કોઈ દવાની કશાની જરૂર નહીં પડે. હવે એને માટે મન બનાવવું જોઈએ. તો એ તો જરા યુવતીઓ માટે સાધના કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. પણ સાધના કોણ કરે? ઋષિઓ સાધના કરે, સાધુ સંતો સાધના કરે, શ્રેષ્ઠ લોકો સાધના કરે. નમારા લોકો શું સાધના કરવાના હતા? તો એ કરવી પડે. એનો કોઈ વિકલ્પ નથી કે જરા થોડું ઢીલું કરવાનું, થોડું ભાવ એ કંઈ ભાવદાન કરવાના હોય ને એમાં. અને મનને, હૃદયને કોમળ બનાવવા માટે કલા. છોકરીઓ માટે વ્યાયામની સાથે સાથે રસની પણ સાધના છે. તો નૃત્ય છે અને સંગીત છે અને ભરત ગૂંથણ છે. આ બધા દેશી ગામઠી ઉપાયો નથી. આ બધા અત્યંત વૈજ્ઞાનિક સમજદાર લોકોએ કહેલી વાતો છે. આપણને આજે કોઈ કહેતું નથી અને આપણે ખબર નથી શેના રવાડે ચડીને નથી કરતા, પણ એ આપણો વિકાસ કરવા માટેના ઉત્તમ સાધનો છે. મશીન ભરત નહીં, હાથે બનેલી સાડી પહેરો, હાથે બનેલો ડ્રેસ પહેરો. ભાઈ માટે ને પિતાજી માટે સ્વેટર ગૂંથો, હાથે ગૂંથેલું પહેરાવો. કલા છે, કારીગરી છે, કુશળતા છે, સંગીત છે, નૃત્ય છે. આજના જેવા ડીજે ઉપરના ગરબા એ કંઈ સાંસ્કૃતિક નૃત્ય નથી. ખરેખર ગરબા કહો તો એ કલા સાધના અને શ્રમ સાધના અને ગૃહ સાધના એ સારી કન્યા બનવા માટેના સીધા સાદા ઉપાયો છે. આ દેશી ઉપાયો છે, પણ ભારતના લોકો જે કરે એને દેશી કહેવાય નહીં, બાકીનું તો બધું વિદેશી કહેવાય. તો વિદેશીના રવાડે ચડીને આપણું બધું જ ગુમાવતા જઈએ આપણે, એ કંઈ પરવડે એવી વાતો નથી અને બુદ્ધિમાનીની વાતો પણ નથી. આ મેં શરીર અને મનને યોગ્ય બનાવવા માટેની વાત કરી. ત્રીજો મુદ્દો 5 જ મિનિટમાં કહું છું. આગળ જતાં ઘર ચલાવવા માટેની બધી જ કુશળતાઓ છોકરીઓ અને છોકરાઓ બંનેએ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. ઘર ચાલે કેમ? ઘર ચાલવા માટે પૈસા કમાવા જોઈએ. ઘર ચાલવા માટે ભોજન બનાવતા આવડવું જોઈએ. ઘર ચાલવા માટે બાળકોનો ઉછેર કરતા આવડવું જોઈએ. ઘર ચાલવા માટે અતિથિ સત્કાર કરતા આવડવું જોઈએ. ઘર ચાલવા માટે કુળના આપણા પારંપરિક રીતિ રિવાજો, વ્રતો, ઉત્સવો, તહેવારો આ બધામાં શું કરાય અને શું ન કરાય એ બધું જાણવું જોઈએ અને કરતા પણ આવડવું જોઈએ. આ આપણે માટે એપ્રેન્ટિસશીપ અથવા ટ્રેનિંગનો સમય છે, જ્યાં આપણા માતા પિતા, આપણા માર્ગદર્શકો છે, શિક્ષકો છે, ગુરુઓ છે અને આપણે એમની પાસે ભણનારા શિષ્યો છીએ. આપણે એમની પાસે ભણનારા વિદ્યાર્થીઓ છીએ અને જેનું પરિણામ થોડા સમયમાં દેખાવાનું છે અને પછી આપણે આપણા અધિકારથી અને આપણી જવાબદારીથી ઘર સંચાલન કરવા માટે, કુટુંબ સંચાલન કરવા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાના છીએ. કોલેજમાં ભણવું એ એક વાત છે, ઘરમાં ભણવું એ વધારે મહત્વની વાત છે. એ ભણવા માટે જે તૈયાર હશે એને ભણાવવા માટે ઘરના માતા પિતા તો બિચારા ઉત્સુક છે કે ક્યારે અમને અમારા જેવા આપણા કુળને શોભે એવા
આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સમાજને માટે યોગ્ય હોય, શોભે એવા કેવી રીતે બનાવીએ એને માટે એ લોકો તો બરા ઉત્સુક જ છે. આપણે તૈયાર થવાનું છે, આપણે એ માટે સિદ્ધ થવાનું છે. મેં કહી તો બહુ જ સીધી સાદી 3-4 બાબતો જ કહી છે, પણ એ અત્યંત મહત્વની છે. એટલી કરીએ તો થોડું કર્યું ઝાઝું મેળવી, થોડું જ વ્યવહારમાં લાવ્યા અને બહુ જ વધારે એનું ફળ મળ્યું એવું થવાનું છે. અઘરું પડતું હોય તો અઘરું પડે એટલે અભ્યાસ કરીને પ્રેક્ટિસ કરીને સહેલું બનાવો. મનને સમજાવીને એનું સ્વીકાર થઈ શકે એવું કરો. પણ આપણી પરંપરા, આપણા શાસ્ત્રો, આપણા ઋષિઓ, આપણા વડીલો, આપણા મોટા લોકો, જ્ઞાની લોકોએ જે માર્ગો આપણને બતાવ્યા છે એ માર્ગોને સમજીને એના પર ચાલવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો આપણું સૌથી પહેલું આપણું ભવિષ્ય સારું થશે. અને પછી આપણો પનારો જેને પડશે એ બધાને માટે પણ સુખનો અવસર આવશે. તમે બધા સુજ્ઞ છો, સમજદાર છો. આટલી સીધી સારી વાતોને જરૂરથી સમજી શકશો અને યાદ રાખશો એવી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂર્ણ કરું છું. अभी तक कल से लेकर आज तक विवाह का तत्व क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, विवाह को लेकर वर वधू की संकल्पना क्या है, वर वधू का सामर्थ्य कैसे बढ़े, अच्छे वर वधू कैसे बने, भारतीय विवाह की संकल्पना, पश्चिम के संकल्पना और बहुत सारे ऐसे विषय जिसको हमने समझा है और आगे समझने का और प्रयास करेंगे. ये विषय आपके लिए बहुत नए थे, लेकिन इन विषयों को पचाने में थोड़ा समय तो लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ. लेकिन ये विषय आपके पास पहुँचे ये बहुत जरूरी था. तो आप इस यात्रा से तत्व से अब व्यवहार की ओर आ रहे हैं. आपने विवाह के तत्वों को समझा, विवाह संस्कार क्या है उसके तत्वों को समझा. अब जोड़ी कैसे बनती है, विवाह का मतलब तो समझ में आ गया, अब ये जोड़ी कैसे बनती है इसको हमें समझना है, शास्त्र के साथ भी और आज की परिस्थितियों के साथ. और बाद में चर्चा सत्र में हम उसकी और क्या आज के समय में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, उसकी भी चर्चा कर पाएंगे. वर वधू की जोड़ी कैसे बनती है, कुछ बिंदु हैं जिन पर हम अभी के सत्र में चर्चा करेंगे. जो विषय रहेगा उसमें पहला उसका बिंदु है वंश परंपरागत और कुल परंपरागत संस्कार. दूसरा रहेगा गोत्र पिंड. ये धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, इनका विचार धर्मशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कैसे करना है, ये दूसरा बिंदु है. तीसरा जो सबसे ज्यादा आज के युवाओं को रहता है, सगोत्र सपिंड विवाह निषेध, इसके वैज्ञानिक कारण क्या है. समझ में आ गया नहीं करना, लेकिन इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, हर चीज का वैज्ञानिक कारण बहुत जानना जरूरी है. तो ये भी समझेंगे, ये भी जानेंगे. फिर हम वर और वधू के गुण और अवगुण क्या है, क्या गुण होने चाहिए, क्या अवगुण हैं, होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे. वर वधू के गुणों में साम्य क्या है, समानता क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रतिरूप कैसे हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे. विवाह संस्कार में वर वधू चयन में ज्योतिष का भी बड़ा महत्व है. उसकी बहुत तकनीकी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक सामान्य जानकारी जो ज्योतिष की होनी चाहिए उसकी भी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे. और फिर विवाह के समय जो सबसे कल भी हमारी चर्चा में विषय रहा था, विवाह के समय आयु क्या होनी चाहिए, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है और बहुत इसका ये चर्चा का रहता है. आज के युवाओं में तो विशेष रहता है कि आयु क्या होनी चाहिए.
और अभी उस पर पिछले सरकार में भी विषय चला था आयु बढ़ाने का लेकर। तो इस पर भी एक हमारा एक चिंतन रहेगा कि विवाह के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, उसकी आयु क्या होनी चाहिए, उसका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु इस पर हम बात करने वाले हैं वंश परंपरागत और कुल परंपरागत संस्कार। वर वधु की जोड़ी बनाते समय वंश या कुल की परीक्षा नैतिक और भौतिक दोनों दृष्टि से की जानी चाहिए। उसकी नैतिकता क्या है, परिवार की, कुल की और भौतिक की। आज उसका उल्टा होता है जरूर, परिवार की दृष्टि से भी, और हम भी अगर चयन करते हैं सामान्य रूप से तो यही देखते हैं उसकी भौतिक स्थिति क्या है, उसकी संपन्नता कितनी है। और मोरबी में तो ज्यादा यही देखा जाता है और सामान्य सब जगह ऐसा ही है। वो भी बड़ी इंडस्ट्री क्षेत्र है, लेकिन बाकी सब जगह भी ऐसा ही है। कमाता कितना है, ये परिवार में कितना संपन्नता, इतना ही देखा जाता है। लेकिन उससे पहले ये देखना है ये अच्छा है, लेकिन उससे पहले नैतिक कितना है ये भी जरूरी है। वंश कुल, क्योंकि वंश और कुल में अगर नैतिकता होगी तो स्वाभाविक रूप से वर और वधु में ये प्रत्यक्ष प्रभावकारी होने के कारण, ये जो नैतिकता है और भौतिकता ये प्रत्यक्ष प्रभावकारी होने के कारण समाज में स्थापित हो गया है, जिससे व्यक्ति का महत्व कम हो गया है और वंश का बढ़ गया है। ये सीधा प्रत्यक्ष दिखता है। अगर नैतिक कुल होगा, नैतिक उसका परिवार होगा तो उसके बच्चे में भी दिखेगा नैतिकता। तो ये बहुत महत्व का विषय है और ये पूरे समाज में स्थापित हो गया है ये सिद्धांत कि परिवार नैतिक होना चाहिए। ऐसा ही होता था, आज की परिस्थितियां कुछ बदल गई, लेकिन मूल रूप से होता ऐसा ही था। हमारी पीढ़ी से पूर्व, हमारी पीढ़ी तक भी कुछ ऐसा देखा जाता था। मेरे दादाजी ने मेरे चाचा की सगाई सीधे जाकर परिवार में कर दी, लड़की नहीं देखी थी, परिवार देखा हुआ था, उनके दादा को जानते थे, उनके नाना को जानते थे। उनको जाकर कहा मुझे आपके परिवार की बच्ची चाहिए, वो भी सहमत हुए और सगाई हो गई और विवाह हो गया। हमारी पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी से पूर्व आपके पिताजी की भी और आपके चाचा भी, आपकी पीढ़ी से पूर्व भी ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कुल और परंपरा, उनके संस्कार देखे जाते, उनकी नैतिकता देखी जाती। भौतिक भी देखते थे, लेकिन वो दूसरा पायदान पर होता था, उनका नैतिकता कितनी है ये देखा जाता। एक इसके पीछे एक कहानी भी है, उसके कुल की परंपरा, उसके संस्कार कैसे हैं। एक सेठ जी थे, सेठ जी के 3 लड़के थे और 3 लड़कों में 2 का विवाह उन्होंने कर दिया था उसी पद्धति से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो छोटा वाला बेटा था वो माँ का लाडला था, तो माँ ने कहा कि मैं तो अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से उसकी शादी करूंगी। 2 की आपने चलाई है, अब 1 में मैं अपनी चलाऊंगा। ठीक है, सेठ जी मान गए। ठीक। माता जी जो थी, जो सेठानी थी, वो रोज मंदिर जाती थी। मंदिर में एक कन्या रोज पूजा के लिए आती थी, सुंदर थी। तो सेठानी जी को पसंद आ गई कि ये तो मैं अपने छोटे लड़के के लिए लूंगी। बात की, परिवार से उसके पसंद आ गया और सेठानी जी ने प्रस्ताव रखा सेठ जी के सामने। सेठ जी ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं करना। तो सेठानी जी नाराज हुई कि आप मेरी किसी बात को नहीं रखते हैं, अब तो मैं इसी घर में करूंगी। अपने दोनों बेटों को, बहुओं को दिखाया और विवाह तय कर दिया। विवाह हो गया, लेकिन सेठ जी को ये सारी व्यवस्थाएं समझानी थी कि मैं मना क्यों कर रहा था। तो सेठ जी ने अपने एक चिकित्सक मित्र को बुलाया और सारी व्यवस्था समझाई। चिकित्सक मित्र ने कहा कि सेठ जी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। शहर ले जाकर बहुत बड़ी बीमारी है, खर्चा बहुत लगने वाला है। तो दोनों बहुओं ने अपने पास जितना भी धन था, जितना भी स्त्री धन था जो सेठ जी ने दिया था अपने बिगड़ से लाए, वो सारा कुछ लाकर दे दिया। छोटे बेटे ने भी अपनी पत्नी से कहा तुम भी जल्दी लेकर आओ, पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। उसने मना कर दिया, मैं नहीं ला सकता, मैं नहीं लाऊंगी, इतना सारा धन है, अगर तुम्हारे पिता को कुछ होता है तो हो जाए। तो फिर गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ और झगड़ा चली गई और जाकर गांव के बाहर कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गए। सेठ जी ने वहां पहले से 2 व्यक्ति बिठा रखे थे।
उन व्यक्तियों ने वहां रोक लिया। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, सारे परिवार वाले चकित थे कि ये हुआ कैसे, आपको कैसे पता कि वो कुएं में कूदने वाली थी? सेठ जी ने कहा, मैं इसके परिवार को पहले से जानता, इसकी नानी भी कुएं में कूदकर उन्होंने आत्महत्या की थी। तो हम जो बात कर रहे थे कल, माँ की 5 पीढ़ियों के संस्कार, पिता की 14 पीढ़ियों के संस्कार, कुल परंपरा के संस्कार, ये इस तरीके से आते हैं। आपने देखा होगा, आप में बहुत बार आपको कहते होंगे ये मेरे दादा करते थे, आपके पिताजी कई बार कहते होंगे ये मेरे पिताजी ऐसा करते थे, मेरे दादा ऐसा करते थे। तो ये कुल परंपरा के संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है जब वर वधू का चयन किया जाता है। कुछ शास्त्रों की भी बात कर लेते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि शास्त्र ही हमारे प्रमाण है। भारद्वाज गृहसूत्र के अनुसार वधु चयन करते समय 4 बातें देखनी चाहिए। कौन सी है? धन, सौंदर्य, बुद्धि एवं कुल। अब इन 4 में अगर धन नहीं है और शेष 3 गुण हैं तो भी धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये 4 गुण बताए, लेकिन अगर धन नहीं है तो शेष सारे 3 गुण हैं तो फिर उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मनु जी ने क्या कहा है? मनु ने कहा है, विविध धन धान्य से पूर्ण होने पर भी जात कर्मादि संस्कारों से रहित हो, वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें अर्श, बवासीर, क्षय यानी राज्यक्षमा, मंदाग्नि, मृगी, श्वेत दाग और कुष्ठ रोग जैसे दारुण रोग हो, वहां विवाह नहीं करना चाहिए। अभी इससे पहले जो सत्र था, ताई ने जो सत्र लिया, उसमें ये अपने आप को सक्षम बनाना, अपने आप को सामर्थ्य संपादन करना, ये भी ताई ने। तो ये उसी के लिए, उसी के आधार पर अगर ये सारी चीजें नहीं की आपने तो ये सारे रोग, ये सारी समस्याएं होंगी। और अगर कुल में भी है तब भी नहीं करना। वर वधू चयन करते समय ये भी विषय हमें ध्यान रखना चाहिए, मनु ने हमें। अब ये हमारे शास्त्र तो कहते हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक और आज क्या कहता है उसको लेकर, क्योंकि शास्त्र तो हमने पढ़े नहीं है और हमारी आस्था भी कम है उसमें। हाँ, घर में पढ़ते हैं, रखे हुए हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन वो जीवन में कैसे? क्योंकि हमारी आस्था तो आज के जो वैज्ञानिक कहते हैं या जो पश्चिम के लोग कहते हैं उस पर ज्यादा है। उनकी भी बात जान लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अमेरिका के डॉक्टर बुब्रुक महाशय ने निम्न कुल में विवाह करने से मना किया है। कहा, जहां विक्षिप्तता है, पागलपन है, जिस कुल में परिवार में पागलपन है वहां नहीं करना। गठिया, क्षय, श्वास रोग, सदैव क्रोध करने वाले, नासूर जैसे रोग हैं, ऐसे जहां रोग पाए जाते हैं वहां विवाह नहीं करना। डॉक्टर अमेरिका के हैं डॉक्टर बुब्रुक, उन्होंने कहा। जर्मन देश के प्रसिद्ध वैद्य ह्यूगलैंड भी इन सब बातों से सहमत है। तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो इस बात से सहमत है कि कुल परंपरा के संस्कार जब वर वधू का चयन किया जाता है ये देखने बहुत जरूरी है। अब क्यों देखें, इसका कारण क्या है? ये समस्याएं तो होती है, लेकिन देखें क्यों इनको, ये भी बात समझने की। तो कुल परीक्षा में अधिक सावधानी का एक महत्वपूर्ण कारण है प्रजनन शास्त्र। हमने कहा, अभी चर्चा की थी इसकी और कल से भी चर्चा कर रहे हैं। उक्त प्रयोजन के लिए भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से योग्य दंपति अनिवार्य अपेक्षित है। अब प्रजनन शास्त्र के लिए कौन सी दंपति चाहिए? अभी हमने जो चर्चा की थी सत्र से पहले, भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि संतान में माता पिता के अच्छे और बुरे दोनों गुणों का संक्रमण होता है। अगर अच्छे हैं तो भी आएंगे और बुरे हैं तो भी आएंगे। तो कुल के हाथ से रक्षा के लिए वर या वधू चुनने में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। ये सारी अगर चीजें हैं, ये सारी दृष्टि रखते हुए अगर वर और वधू का चयन करते हैं तो हमारे कुल का हास नहीं होगा, ये इसमें कहा। क्यों? ये क्यों ध्यान रखना? इतना सारी चीजें नस्ल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली कुल के लिए इतना
इतना ध्यान क्यों रखना? हम एक छोटी नस्ल के लिए भी, इस जानवर की, इस पक्षी की ये नस्ल जो है वो खत्म हो रही है, इस पर प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, कुत्ते की ये नस्ल खराब हो रही है, खत्म हो रही है, इस पर भी प्रयास करते हैं। किसी फल की, आम की नस्ल को और अच्छा करना है और उन्नत करना है, उस पर भी काम हो रहा है। बहुत सारी नस्लों पर काम हो रहा है। सुनिए, वहाँ क्या होता है, एक्सीडेंटल हो गया, फर्स्ट साइट लव हो गया, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। तो वर वधू चयन करते समय इन बातों का भी बहुत ध्यान है। हम फसल उत्पादन जब लेते हैं तो बीज बहुत उन्नत किस्म का होना चाहिए, ये ध्यान रखते हैं। जब किसान वर्ग से होंगे या जिनका परिवार में किसान है उनको पता होगा, जब बीज अगर उन्नत होगा और भूमि में उर्वरा शक्ति अगर अधिक होगी तभी वहाँ उन्नत फसल हो पाएगी। तो हमें बीज भी उन्नत करना है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ानी है। हमारे महर्षियों ने शास्त्र ग्रंथों में समाज को सुस्वस्थ रखने के लिए वो विवाह हेतु वंश एवं कुल परंपरा, संस्कार, शील, गोत्र, पिंड आदि के बारे में सुदीर्घ चर्चाएं करनी आवश्यक समझा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने समझा है, ताकि इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारा जो दूसरा बिंदु है गोत्र और विचार। यहाँ गोत्र के बारे में क्या समझते हैं? गोत्र का मतलब क्या है? जाति का मतलब तो बहुत सारे वर्ग से जानते होंगे। गोत्र मतलब क्या है? गोत्र का प्रयोग करते हैं क्या? हम आज सामान्य रूप से पूजा और पाठ में कहीं कहीं होता होगा, लेकिन सामान्यतः गोत्र का प्रयोग विवाह जैसे उपलक्ष्य में होता है। ये हमें इसकी कहीं जानकारी है या कहीं देखा है? कहीं कहीं हमारे परिवारों में जहाँ विवाह होता है वहाँ विवाह से पूर्व दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के गोत्र की चर्चा करते हैं। कौन सा गोत्र है, दादा का कौन सा गोत्र है, नाना का कौन सा गोत्र है, वधू के वर के दोनों तरफ से ऐसी चर्चाएं होती हैं? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि विवाह नहीं है, मैरिज हो गया। विवाह नहीं है, इवेंट हो गया। आजकल तो ना पंडित जी तय करते हैं और ना बड़े बुजुर्ग तय करते हैं, फोटोग्राफर और इवेंट मैनेजर तय करते हैं। तो वहाँ गोत्र का कहीं स्थान ही नहीं। तो गोत्र कितना महत्वपूर्ण है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। चतुर्वर्ग पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना के लिए, जीवन के निरंतर सौख्य के लिए 4 आश्रमों की स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने की। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। सभी जो आश्रम है धर्म की साधना के लिए बनाए गए। सभी आश्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। क्यों है? सभी आश्रमों का संचालन, सभी आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला बालक बालिका भी गृहस्थ में रहता है और उसके बाद भी जो अवस्थाएं हैं, हमारे जो प्रौढ़ अवस्थाएं हैं, वानप्रस्थ है, संन्यास है, उनमें भी घर में ही वो गृह जो गृहस्थ आश्रम है वही उसका संचालन करता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो गृहस्थ आश्रम है। पूर्व में जब गुरुकुल में छात्र स्नातक होने पर आचार्य उन्हें क्या आशीर्वाद देते थे? प्रजातंतु मां अवेक्षितसि, अर्थात प्रजा रूपी तंतु को कभी विच्छिन्न मत करना, ये आशीर्वाद है। हमारी परंपरा में 3 ऋणों की बात हुई है। कल भी बात हुई थी, कल भी चर्चा हुई थी। नियति ताई ने कहा वो नहीं, हमारे यहाँ जो शास्त्र में 3 ऋणों की बात हुई है वो ऋण भी आजकल चलते हैं, लेकिन हमारे जो शास्त्र में जो चर्चा हुई है 3 ऋणों की, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन 3 ऋणों की बात। तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सुसंतति उत्पन्न करना। अब गोत्र की बात करें। गोत्र यानी क्या? गोत्र से तात्पर्य है कि हम सब ऋषियों की संतान हैं। ऐसा तो हम सब मानते हैं ना, इसमें तो किसी को संशय नहीं है कि हम ऋषियों की संतान है या नहीं है, या हम बंदर से उत्तर प्रगति की ओर आए हैं।
ऐसा कोई मानता है या हम ऋषियों की संतान है ऐसा मानते हैं? संशय ऐसा लग रहा, तभी जोर से आवाज नहीं आ रही। गर्व से कहें हम ऋषियों की संतान हैं, है ना? हम ऋषियों की संतान हैं। जिस ऋषि के कुल में हम जन्मे हैं वही हमारा गोत्र है। सबके अलग अलग गोत्र होंगे, कोई भारद्वाज गोत्र से होगा, कोई अत्रि होगा, कोई जमदग्नि होगा, अलग अलग गोत्र से सब हैं। जिस गोत्र से, जिस ऋषि से हम उत्पन्न हुए, हमारे पूर्वज जो ऋषि थे वही हमारा गोत्र है। अब ये सगोत्र विवाह है, ऋग्वेद में सगोत्र विवाह का स्पष्ट निषेध नहीं है, परंतु गृहसूत्र जो दूसरे और शास्त्र हैं उनमें विवाह में सगोत्र निषेध का विस्तृत विवेचन किया। धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एवं विष्णु धर्मशास्त्र में वर के लिए समान गोत्र कन्या विवाह निषेध कराया। एक ही गोत्र में विवाह को निषेध माना। अब क्या है, वेद व्यास इससे भी आगे चले जाते हैं। हमारे जो महर्षि वेद व्यास वो इससे भी आगे, मतलब पिता का गोत्र एक नहीं होना चाहिए, वर और वधू के दोनों का। ये कौन कह रहे हैं? याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और मनुस्मृति। वेद व्यास जी और भी आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि वर को अपने पिता और अपने माता के समान गोत्र वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अब दोनों गोत्र एक नहीं होना चाहिए, माता का भी और पिता का भी। तो ये दोनों गोत्र एक समान नहीं होने चाहिए मुख्य रूप से। अब एक गोत्र है क्या, कौन कौन से गोत्र है? मुख्य गोत्र कौन है? फिर बाद में और बढ़ोतरी हुई है। गोत्र मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, कोई बता सकते हैं? उसकी संख्या कितनी है मूल रूप से? इतने गोत्र है। जैसे मैंने 2-3 नाम लिए, मूल रूप से गोत्र कितने हैं? फिर उनमें धीरे बढ़ोतरी हुई। 8 गोत्र मूल रूप से। कौन से हैं? 7 गोत्र। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। आप नोट कर सकते हो। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, ये 7 गोत्र। प्रारंभ में 7 गोत्रों की कल्पना थी, धीरे धीरे थोड़े और बढ़ते गए। क्यों बढ़े? क्योंकि जिस गोत्र में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ, प्रसिद्ध ऋषि हुआ, उसके नाम से फिर गोत्र और बढ़ गया धीरे धीरे। जैसे पहले जो राजा महाराजा होते थे, प्रसिद्ध होते थे, वो अपने नाम से संवत्सर चलाते थे। ऐसा होता था, विक्रम संवत्सर। उससे पहले भी वर्ष तो होते ही थे, लेकिन विक्रम संवत, विक्रमादित्य के बाद नया संवत्सर प्रारंभ हुआ। वैसे ही जैसे उस कुल में प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं जिनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, उनके नाम से भी गोत्र हुए। ऐसे करके करके सैकड़ों गोत्र हो गए हैं आज के समय में। अब ये सगोत्र विवाह निषेध क्यों माना? निषेध क्यों है? उन्होंने कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, गोत्रों को भी हमने देखा है, लेकिन ये निषेध क्यों है? जिन परिवारों के आदि पुरुष एक ही हैं, ये बहुत सामान्य परिभाषा है। जिन गोत्रों के आदि पुरुष एक ही हैं, यानी कि आप भी भारद्वाज गोत्र में हैं और वधु भी भारद्वाज गोत्र की है, यानी उनके दादा एक ही, परदादा मान लें, जो भी एक ही हैं, तो क्या हो गए? फिर दोनों भाई बहन हो गए। इसीलिए मूल रूप से गोत्र में सगोत्र विवाह को निषेध किया है। भाई बहन का विवाह नहीं होना चाहिए, ये हम मानते हैं ना। हमारे यहाँ तो नहीं होता, जहाँ होता है वहाँ की स्थिति हम जानते हैं। तो हमारे यहाँ, हमारी व्यवस्था में नहीं होता, हमारी सनातन परंपरा व्यवस्था में नहीं होता, ये हमें पता है और हम मानते भी हैं। लेकिन ये जो लव एट फर्स्ट साइट होता है, उसमें देखा जाता है, इसमें समझा जाता है, आज की जहाँ अर्थ प्रदान व्यवस्था हो गई है वहाँ ये देखा जाता है हमारे परिवार में नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, वो भौतिकता देखते हैं। आजकल चलता है, एक शब्द है ना, आजकल चलता है। आज ऐसा नहीं होता। अगर आजकल चलता है, आजकल ऐसा नहीं होता, तो फिर कल क्या होगा उसका परिणाम हमें भी पता नहीं, और उसका बहुत विकृत परिणाम हो सकता है। इसकी हमने पिछले सत्रों में चर्चा की है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसमें हमें
सगोत्र में विवाह नहीं करना है। विवाह संस्कार करते समय, गौर करिएगा, विवाह संस्कार करते समय सगोत्र निषेध अनिवार्य हो गया था इसलिए कह रहा हूं, आज नहीं है, लेकिन अनिवार्य है, था और है। अभी हो नहीं रहा वो अलग बात है, परंतु संस्कार के समय, इवेंट के समय नहीं। इवेंट में तो सब चलता है, इवेंट मैनेजर जो करेगा वो होगा। सूत्र ग्रंथ और स्मृतियों में सगोत्र उल्लंघन के लिए विभिन्न दंड व्यवस्था भी दी गई है। हमारी स्मृति ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में सगोत्र अगर विवाह करते हैं तो उसमें दंड का प्रावधान भी है। और एक शब्द और है पिंड का विवाह, पिंड विवाह, पिंड गोत्र, ऐसा नाम आपने सुना होगा। गोत्र का मतलब तो हमारे बहुत आगे के पूर्वज, और पिंड का मतलब एक ही परिवार जिनके दादा नाना परनाना एक ही हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, एक ही पिंड से। ये पंजाब में बहुत ज्यादा शब्द प्रचलित है, हमारे कम पिंड, एक ही पिंड के, मतलब दादा नाना बहुत ज्यादा ऊपर की पीढ़ी नहीं, दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी एक ही है, ऐसा मानते हैं, उसको पिंड कहते हैं। और आजकल ये भी प्रचलन में देखा नहीं जाता है, उसके दादा परदादा होंगे, कोई बात नहीं, आजकल चलता है, लड़कियां कम मिलती है, कर सकते हैं, या देखा समझ में आया हो गया तो फिर विवाह करनी है। तो आजकल ये पिंड विवाह भी प्रचलन में है, बड़ा घातक हो गया। कैसा घातक है? अब ये इसके पीछे वैज्ञानिक कारण देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पश्चिम की मोहर नहीं लगेगी ना, तब तक वो बात सिद्ध नहीं होती। हमारे ग्रंथों में कुछ भी कहा हो, लेकिन जब तक पश्चिम की बात नई मोहर लगेगी, हम उसको सिद्ध नहीं मानते। तो क्या है, डॉक्टर बेलफेयर ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 से 78 में लिखा है। इसका मैंने कहाँ से लिया, मैं अंत में आपको बताऊंगा, ये रेफरेंस कहाँ से है, उसमें आप देख भी सकते हैं उसको। माता पिता का प्रभाव संतान पर अवश्य पड़ता है। समीपी संबंधियों की संतान या तो अपने माता पिता से बुरी या अंगहीन होती है, कुष्ठी इत्यादि अथवा पागल। एक उदाहरण देते हुए बेलफेयर कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की घाटियों में रक्त संबंधियों में परस्पर विवाह का प्रचार है, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है, और उनके यहाँ ठिंगनी और पागल संतान अधिकता से पैदा होती है। बीकानेर में भी एक मोहल्ला है, पंजाब गिरान, मुस्लिम मोहल्ला है, वहाँ भी ऐसा प्रचलन बहुत मात्रा में, और वहाँ तो एक मोहल्ले का जिक्र किया, वहाँ तो ऐसी परंपरा है। वहाँ हर दूसरे तीसरे घर में या तो विक्षिप्त है या फिर अपंग है, हर दूसरे तीसरे घर में, और बहुत याद में। एक मेरा निजी अनुभव बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिनके माताजी और उनकी सासू, उन दोनों का दरमियान एक ही, यानी कि दोनों बहनें हैं। मैं पिंड वाली बात नहीं, पिंड वाली बात है, दोनों की दोनों बहनें, और वास्तव में उन मेरे मित्र के 2 लड़के हैं, दोनों मानसिक रूप से विकसित, इसको ऑटिज्म कहते हैं। वो ऑटिज्म से पीड़ित है। तो ये सीधा सीधा उदाहरण है, हम उसको, आप रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं ये अलग बात है, लेकिन मोबाइल पर आप उसको देखिएगा, समझिएगा, तो ये पता चल जाएगा कि आप वास्तव स्थिति क्या है। अब आगे चलते हैं और हम वधु के गुणों की ओर। समान रूप में धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, कुल, यही विवाह में विचारणीय है। विभिन्न धर्म ग्रंथ भिन्न भिन्न बातें भी बताते हैं, और वर के गुण क्या होने चाहिए, वधु भी नोट कर सकते हैं और भावी वर भी उसको नोट कर सकते हैं। नहीं है तो हमें ये हासिल करना है इन गुणों को, और वधु भी इन गुणों का परीक्षण करके अपने वर का चयन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम को, गौर करिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम को यथाविधि समाप्त कर के ज्ञान प्राप्त कर लिया। वर में ब्रह्मचर्य आश्रम, आज इसकी कल्पना है कि ब्रह्मचर्य आश्रम यथाविधि, जैसा विधि में है वैसा कर लिया है। आजकल तो संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भटकाव के बहुत सारे साधन हैं। अभी इसके पूर्व सत्र में कहा ना
हम अगर वास्तव में अपने आप को युवा कहते हैं तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प कर सकते हैं क्या? हम ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा यथाविधि करेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये गुण है। अगर वास्तव में तो इसी में ये मानिए, पर ये होने वाला है वापस, क्योंकि ये सारी चक्रीय व्यवस्था है। मैं डरा नहीं हूँ, बता रहा हूँ, ये सारी चक्रीय व्यवस्था है। वापस से भारतीय शास्त्रों स्थापित होंगे समाज में, और अगर हमने उसको स्थापित हमारे जीवन में नहीं किया तो आप फिर रह जाएंगे, आपका चयन नहीं होगा वर के रूप में। तो हमें ब्रह्मचर्य आश्रम विधि पूर्वक पूर्ण करना है, ये पहला गुण है। मनु और याज्ञवल्क्य ने भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश वाले को अविलुप्त ब्रह्मचार्य गुण से युक्त होना बताया। सारे जितने भी शास्त्र बताएंगे वर को अविलुप्त ब्रह्मचार्य युक्त होना बताया। तो ये बहुत बड़ा गुण है। इसकी ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये बड़ा गुण है, इसको ध्यान में रखना। ब्रह्मचारी पद से सामान्य रूप में यही अर्थ ग्रहण किया जाता है। क्या सामान्य रूप में क्या अर्थ करते हैं, विस्तृत नहीं बात करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है आप बता सकते हैं? सामान्य रूप से, शास्त्र बात नहीं, सामान्य रूप क्या कहता है ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में? जिसने अपना शुक्र रक्षा का व्रत भंग ना किया। आज सामान्य रूप से, शास्त्रों और विस्तृत बात नहीं करेंगे, जिसने अपनी शुक्र रक्षा का व्रत भंग नहीं किया हो। आज तो बहुत सारे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे। और ये केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, आपकी मानसिक और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल तुषार जी ने जो विषय कहा था, हमें 6 महीने का नहीं सोचना है, हमें आने वाले न्यूनतम 10 वर्ष का सोचना है। अगर उस तरीके से हम अपने जीवन को जिएंगे तब हम सामर्थ्यशाली हो पाएंगे और आने वाली पीढ़ी का सही तरीके से नियोजन कर पाएंगे। याज्ञवल्क्य ने वर के गुणों में एक युवा गुण का उल्लेख किया है। आज के युवा नहीं, जो अपने आप को 30, 35, 40, 45 के बाद भी युवा नेता कहते हैं, वैसा युवा नहीं चाहिए। लिंग पुराण में यह घोषित किया है कि सर्वप्रथम वर की आयु की परीक्षा करनी चाहिए। आगे 40-45 वाला युवा नहीं, सबसे पहले उसकी आयु की परीक्षा करनी चाहिए। अन्य लक्षणों के विवेचन से क्या लाभ? अगर आयु व्यतीत हो गई है, उसकी आयु चली गई है, 25 के बाद की अगर आयु है, तो फिर दूसरे गुणों की चर्चा नहीं करनी है। आजकल तो करिए तो पहले 30 वर्ष तक और उम्र बढ़ानी चाहिए। कल हमारे गट में चर्चा हो रही थी, 18 वर्ष आयु कम है, 21 होनी चाहिए महिलाओं की आयु। फिर जो पुरुषों की आयु 21 से आगे बढ़ेगी, 25 से 30 होगी। जब तक मैं पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता हूँ, पहले किसी ने मना किया था क्या पैरों पे खड़ा होने के लिए? मैं पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता हूँ तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। अब कब खड़े होंगे? 30, 32, 35 तक। आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें तो 30, 35, 32 तक की भी गारंटी नहीं है। अगर गलती से हो भी गए तो 30, 32 साल तो लगने वाले हैं। आप चिकित्सा क्षेत्र में जाने वाले हैं तो आपके 5 वर्ष उसमें और 5 वर्ष और आगे डिग्री लेने में 10 वर्ष चले जाएंगे, तब तक आपकी विवाह की आयु चली जाएगी। शास्त्र के आधार पर आप विवाह की आयु योग्य नहीं है, अगर शास्त्र प्रमाण होंगे तो। पारस्कर ग्रह सूत्र पर गदाधर भाष्य में यम ने सामान्य विशेषताओं तथा इच्छित गुणों का बहुत तर्क संगत वर्णन किया है। विद्वानों को चाहिए, जब वर और उसका चयन करें तो क्या चाहिए? कुल, सील, शरीर, आयु, विद्या, वित्त और साधन संपन्नता, इन 7 गुणों की परीक्षा कर वर को प्रदान करें। कन्या की दृष्टि में भी, कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, कन्या की दृष्टि में भी वर का चयन क्या होता है? कन्या भी अपनी दृष्टि में कैसे वर का चयन करती है? संस्कृत काव्य में एक नाटक में द्वितीय भाग में पद्मावती राजा उदयन से विवाह करना चाहती है। क्यों करना चाहती है? क्योंकि वह दयालु है और दर्शनीय है, दयालु भी है और सुंदर भी है। तो जब कन्या भी वर के लिए अपेक्षा करती है तो ये अपेक्षा रहती है। अब भाई गुणों की तो चर्चा हो गई, अब अवगुणों की भी चर्चा होनी चाहिए। अवगुण कौन से?
सामान्य रूप में गुणों के विपरीत जो भी है वो सारे अवगुण हैं। लेकिन फिर भी अथर्ववेद क्या कहता है? अथर्ववेद कहता है मांस पक्षी अथवा उसकी संतान, हिंसक स्वभाव, छली अथवा निर्दयी मनुष्य, मलिन व चोर, श्वेत बालव तथा पलित रोगी, संक्रामक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित, क्षीण नेत्र दृष्टि, दुष्कर्मी दुष्चरित्र, अब गौर करिएगा, लंबे केसों को धारण करने वाला, असुर या सर्वभक्षी, जंगली अथवा जंगली स्वभाव वाला, कुरूप और कुलक्षण, ये अवगुण बताए वर्ग के हमारे वेद अनुसार। आगे चलते हैं। काव्यधन और वशिष्ठ, पराशर आदि ऋषियों ने भी कमोबेश इसी गुणों अवगुणों की चर्चा की। अब वधु के गुण क्या है? वधु के गुण भी जानने जरूरी है, वर के गुण भी जाने, अवगुण भी जाने। वधु के गुण क्या है? वधु वर से कम आयु की हो, ये गुण होना चाहिए कि वधु कम आयु की हो। अब क्यों हो? आज का सीधा प्रश्न होता है क्यों होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक कैसे होगा? तो कम आयु की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि महिलाएं और स्त्रियों में शारीरिक क्षमताओं का विकास पुरुषों की तुलना में शीघ्र और कम आयु में हो जाता है। देखते हैं ना, ये जल्दी सयानी हो जाती है, कहते हैं ना ऐसा, ये जल्दी लड़कियां जल्दी सयानी हो जाती है, और वास्तव में होता है ऐसा। जल्दी समझदार होती है, ज्यादा भी होती है। और क्या गुण है? रूपवती, स्त्रीत्व युक्त तथा अनन्य पूर्ण के अतिरिक्त कन्या के कुल की जानकारी आवश्यक है। जब उसका चयन किया जाए तो इन गुणों के साथ साथ उसका कुल भी देखना है। और क्या है? कुलीन माता पिता से युक्त, 3 वर्ष से लेकर कम आयु वाली, आचार धर्म संबंधी जन से युक्त, कुल में उत्पन्न होने वाली, शील तथा लक्षणों से संपन्न, सौंदर्य संपन्न तथा रोगहीन स्वभाव वाली, ये सारे गुण होने चाहिए। उक्त आदर्शवादी गुणों की पूर्णता न भी हो, अगर ये सारे गुण ना भी हो तो 3 गुण अनिवार्य है। अनिवार्य है 3 गुण। कौन से हैं? सौंदर्य, वर से आज की सौंदर्य दृष्टि देखनी पड़ेगी, आज का सौंदर्य नहीं है ना। दृष्टि अगर आपकी सही है तो सौंदर्य आपको समझ में आएगा। पहले इसलिए दृष्टि ठीक करने की आवश्यकता है सौंदर्य को समझने के लिए। आज वाला सौंदर्य मत समझना। सौंदर्य वर से न्यून आयु और कौमार्य, यानी कि उम्र की भी उसमें बहुत ध्यान रखने वाली, और जिसने अपनी सील की रक्षा की। सील रक्षा, इस पर बहुत विस्तृत नहीं जाएंगे, लेकिन ये सील रक्षा बहुत अनिवार्य गुण है, और ये अगर नहीं होता है तो इसका परिणाम कितना भुगतना पड़ता है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब जब हमने गुणों की चर्चा की है तब अवगुणों की भी वधु की चर्चा करेंगे। वही बात है, गुण के जो विपरीत है वो अवगुण है, लेकिन मुख्य रूप से क्या कहा है? हरिण के समान पैरों वाले, यानी कन्या विपत्ति का साथ नहीं देती, भाग जाता। विपत्ति आती है, हरिण भागता है, वैसे ही जो विपत्ति में साथ नहीं देती वैसा। बैल के समान दांत वाली, यानी उससे तात्पर्य है अधिक खाने वाली, अर्थात अधिक खाने से वह आलसी हो जाती है। उससे मतलब जो बहुत ज्यादा खाती है, जो आलस्य है, जिनका गृह कार्य में मन नहीं लगता, गृह कार्य के लिए अनुकूल नहीं है, ये बड़ा अवगुण है। चूल्हा चौका, और अपने को अधिक सुंदर बनाने वाली, बिना मतलब के केमिकलाइज जो जितने भी उपयोग करते हैं सौंदर्य प्रसाधन के, वो सारा कर लेना। और आजकल तो विवाह में सबसे ज्यादा खर्चा वधु का क्या होता है? मेकअप, ब्यूटी पार्लर, 20,000, 25,000, 30,000, पता नहीं कितना कितना खर्चा होता है। वो जितने मोरबी होगा तो 1 लाख होगा, बीकानेर होगा थोड़ा कम होगा। ये इतने सौंदर्य प्रसाधन वाली जो अधिक खर्चा करती है, यानी कि अधिक धन और व्यय में अधिक प्रदर्शन करती है, तो ये वधु के अवगुण बताए। और क्या है? रोगग्रस्त कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, जो किसी रोग से ग्रसित है। रोग से ग्रसित का कारण 2 हो सकते हैं। हमने कुल परंपरा से भी रोग आता है ना, संस्कार भी आता है तो रोग भी आता है। कुल परंपरा से रोग, और अपनी अगर
ब्रह्मचर्य आश्रम, हमारा जो पूर्व का आश्रम है, हमारी जो युवावस्था है, अगर साधनामय नहीं हुई है तब भी रोगग्रस्त हो सकता है। तो रोगग्रस्त कन्या अगर है तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। महाभारत क्या कहते हैं? पांडु रोग से ग्रसित कुष्ठ रोगिणी श्वेत कुष्ठ से युक्त कुल में उत्पन्न अथवा क्षय रोग से ग्रसित कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या को विवाह योग्य नहीं माना, जिसके कुल परिवार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, माता व्यभिचारिणी है। हमने पूर्व में चर्चा की अभी कि क्या स्थिति थी उसकी, वो जो बहू थी वो कुएं में कूदने के लिए क्यों गई, तो उसके कुल और परिवार का अगर ज्ञान नहीं है और माता व्यभिचारिणी है तब भी उस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अब अंतिम में वर कन्या चयन के संबंध में कितने ही गुणावगुणों का विभिन्न समय में प्रस्तुत किए गए हैं। महाभारत में जो व्याख्या प्रस्तुत की है वो सर्वकालिक है। ध्यान दीजिए, जिनका धन और विद्या एक सी है, समान गुण है, एक सी विद्या है, अलग अलग नहीं है, उन्हीं में विवाह संबंध हो सकता है। जो अपने समान में विवाह करता है उनकी नीति श्रेष्ठ है। जो अपने समान कहते हैं ना, हमें अपने बराबरी वाले से विवाह करना चाहिए, हर तरीके से बराबरी, नैतिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी। अगर उस दृष्टि से बराबर है तब उस कन्या का विवाह करना चाहिए। अब गुणों में साम्य क्या है? वर वधु के गुणों में साम्य क्या है? वास्तव में स्त्री के आदर्श गुण और पुरुष के आदर्श गुणों में पूरक होते हैं, प्रतिरूप नहीं होते। स्त्री ज्यादा है, पुरुष कम है, ऐसा कभी नहीं होता। दोनों के गुणों में साम्यता, प्रतिरूप है, विपरीत नहीं है। स्त्री के गुण क्या है? क्षमा, नोट करिएगा, ये गुण हमें अगर नहीं है हमें डेवलप करना है अंदर। क्षमा, प्रेम भाव, धारणा शक्ति और शारीरिक सहिष्णुता, ये शास्त्र आधारित बात है। पुरुष के प्रकृति गुण क्या है? आप भी नोट करिएगा, तेज, त्याग, प्रतिभा, योग शक्ति और मानसिक सहिष्णुता, ये पुरुष के गुण। इन गुणों के अलावा और भी हो सकते हैं, परंतु गुणों की विपरीतता होना बहुत खतरनाक है। अब विपरीतता से क्या मतलब है? कहीं ने जब अंतिम में, अब इससे जो पहले सत्र था, अंतिम क्षणों में कहा था कि पुरुष के गुण स्त्री में होना। स्त्री आजकल क्या है? पुरुष बनना चाहती, कहते हैं कैसे? बेटी बेटों से कम है क्या? माता पिता भी उसी तरीके से उसका लालन पालन करते हैं, और हम भी क्या कहते हैं? हम क्या लड़कों से कम है? हम उसी तरीके से, हमारा पहनावा भी वैसे, इसी मानसिकता के कारण हमारा पहनावा लड़कों जैसा होता है। वरना लड़कियों के श्रृंगार में लड़कियों का पहनावा तो बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हमारा पहनावा भी, लड़कियों का पहनावा भी क्या होता है? लड़कों जैसा। सारे कपड़े वैसे ही पहनेंगे जैसे लड़के पहनते हैं। क्यों? लड़का बनना। बहुत खतरनाक परिणाम हो सकता है इसका। और लड़के भी श्रृंगार में कमी नहीं रखेंगे, ब्यूटी पार्लर और ये क्या, चेहरे पे बहुत सारी चीजें करना, और ये यहाँ से भी इनका सफाई करवाना, ये बहुत सारे जो लड़कियों में गुण है। और कपड़ों का चयन भी वैसा ही हो गया है, तड़क भड़क, रंगीन, फूलों वाले कपड़े, फूलों वाले शर्ट, ये क्या है? ये धीरे धीरे स्त्रीत्व की ओर जाना है। वो गुण अपने आप में, अपनी मानसिकता में बढ़ने लगते हैं। आपको लगता है कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष ही हैं, लेकिन वास्तव में गुणों आपके अंदर बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे स्त्री वाले गुण आ जाते हैं मानसिक रूप से, और स्त्री में पुरुषों वाले गुण आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या होगा? आगे संतानहीनता होगी, जो सताई ने कहा था। आप स्त्री वास्तव में रह ही नहीं पाएंगे, स्त्री नहीं होंगे, और पुरुष पुरुषहीन हो जाएगा, पुरुषत्वहीन हो जाएगा। ये मनोवैज्ञानिक है, और आप जिसको वैज्ञानिक कहते हैं वो वैज्ञानिकता भी। स्त्रियां नहीं रहेंगी, गर्भावस्था उनकी बहुत मुश्किल से होगी। पहले तो गर्भ धारण ही नहीं होगा। आईवीएफ सेंटर उसके बड़े उदाहरण है हर शहर में, और कुछ बड़ा नहीं बड़ा हो, लेकिन आईवीएफ सेंटरों की जो है बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। उन्नत किस्म के आईवीएफ सेंटर है। उसका कारण क्या है? उसका बड़ा कारण यही है, आप देखिएगा। तो ये सबसे बड़ा, अगर गर्भवती हो भी गई तो फिर क्या होगा? ये 10 मास 9 मास चिकित्सक से ही गुजरेंगे, बिना चिकित्सा के, बेड रेस्ट,
कुछ नहीं करना। जबकि ताई ने क्या कहा अभी, हमें क्या करना है गर्भावस्था में, अगर सही गर्भावस्था करनी है तो चक्की भी चलानी है, बिलोना भी करना है, मसाला भी कूटना है, ये सही अगर गर्भावस्था सही बितानी है तो। लेकिन अब तो हम तो लड़का बनने चले थे, तो फिर सारी चीजें क्या होगा, अगर ये सारी चीजें होने के बाद भी, सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो भगवान आपका भला करें। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जैसे ताई ने भी कल कहा था, चिकित्सक उसको स्वस्थ नहीं बना सकेगा, कोई भी चिकित्सक उसको कभी स्वस्थ नहीं कर सकेगा। कोई भी शिक्षक अगर ऐसी संतान होती है तो कोई भी शिक्षक उसे बुद्धिमान नहीं बना सकेगा और कोई भी संत उसे सज्जन नहीं बना सकेगा। अब ज्योतिष के विषय पर आते हैं, थोड़ी सी तकनीकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो 36 गुणों की बात होती है, जब कुंडली मिलान होती है, आजकल तो नहीं होती, लेकिन जब होती है परिवारों में, आजकल भी कई कई परिवारों में है, 36 गुणों की जो चर्चा होती है, तो 36 गुण क्या है उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। देवी संपत्ति युक्त संतान उत्पन्न हो, ये गुणों का मिलान क्यों किया जाता है? देवी संपत्ति युक्त संतान उत्पन्न हो और दंपति गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इस दृष्टि से हमारे ज्योतिष शास्त्र में गहन। अभी कितने इसमें, ये जो मैंने अभी नाम उल्लेख किए, इनमें कितने कितने गुणों का है, गुणांक क्या है इनका? वर्ण में 1, वश्य में 2, तारा में 3, योनि में 4, ग्रहमेत्री में 5, गणमेत्री में 6, मकुट में 7 और नाड़ी में 8। ये कुल मिलाकर 36 गुण होते हैं। अब कौन सा मध्यम है, कौन सा उत्तम है? 18 से 24 ये मध्यम गुण माने जाते हैं, 24 से 30 ये उत्तम है और 30 से लेकर 36 तक ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। वर कन्या गुणों का निरीक्षण के बाद ही, अब ये ध्यान देना, ये गुणों ये मिलान कब किया जाता है? उनके गुणों के निरीक्षण के बाद ही कुंडली में 36 गुणों का होता है। पहले गुण देखे जाता है, कुंडली मिलान से पहले ये सारी चीजें जो हमने पहले चर्चा की, ये पहले देखा जाता है, उसके बाद ही अगर ये सारी चीजें होती है तभी ज्योतिष में कुंडली का मिलान करते हैं। अब अंतिम जो इसका बिंदु है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़े कम समय में। विवाह के समय आयु क्या होनी चाहिए? हमने तो चर्चा की थी, कल पेपर लीक हो गया था, लेकिन वास्तव में आपको क्या लगता है आयु क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज्वलंत विषय है, हम ये चर्चा सत्र में उसकी घट की चर्चा करेंगे, अभी केवल विषय पर चलते हैं। वास्तव में आयु होनी क्या चाहिए? कल हमने चर्चा की तो सामान्य रूप से महिलाओं की ये मत था कि आयु बढ़नी चाहिए, आयु ज्यादा होनी चाहिए, अभी कम है 18 से 21 होनी चाहिए। कमोबेश पुरुष भी यही मानते होंगे कि जब तक पैरों पे खड़ा नहीं हो जाते, 21 वर्ष तो बहुत जल्दी है, कॉलेज में ही नहीं निकलते, थोड़ा 25 वर्ष तो होनी चाहिए, 26 वर्ष तो होनी चाहिए और आगे होनी चाहिए। तो ये, लेकिन इसका आधार क्या है? मुझे लगा यही आधार है क्या? मुझे जैसा ठीक लगा या जैसा चलन में है, आजकल ऐसा चलता है, तो आज का जो चलता है वो चलता नहीं है, वो चलने योग्य नहीं है, वो सही नहीं है। उसका आधार क्या है? हम शास्त्र की बात करें तो शास्त्र क्या कहता है? सभी शास्त्रों का एक मत यह है कि लड़की का विवाह रजो दर्शन से पूर्व हो जाना चाहिए। आप असहमत हो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन असहमति में आपका आधार क्या है ये भी जरूरी है। अलग अलग देशों में वहां की जलवायु के अनुसार रजो दर्शन की आयु अलग भिन्न है। रजो दर्शन का संकेत क्या है? ऋतुकाल प्रकृति का एक संदेश है कि लड़की अब विवाह योग्य हो चुकी है। ऋतुकाल हम उसके बाद, अब ये है क्या, क्यों होता है ऐसा, क्यों आयु करनी है? इसके पीछे जो कल प्रश्न था, मैं उसको गृह कार्य आपने अगर पूर्ण नहीं किया है तो मैं आपका सहयोग उसमें कर देता हूं। ऋतुकाल है उसके बाद स्त्री की काम वासना और पुरुष से इच्छा प्रबल बनती है। यह बात सहज और स्वाभाविक है। नारी ऋतु स्नान करके जिस पुरुष का मुख देखती है या मानसिक रूप से जिसका स्मरण करती है, उसका व्यक्तित्व उस नारी के मानस पर अंकित हो जाता है। अब इससे आप सहमत है या असहमत है, लेकिन इसका चिंतन अवश्य कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम आयु में ही विवाह कर देते थे तो
तुरंत उसको ससुराल भेज देते थे, विवाह हो गया तो वहां चले गए, ऐसा नहीं था। हमारे एक एक विषय पर, एक एक शब्द पर बहुत रिसर्च की गई है, जिसको आप रिसर्च कहते हैं ना। आज की तो रिसर्च उसके सामने कुछ भी नहीं। बहुत गहनता से विचार किया गया एक एक बिंदु पर। अब उसमें 3 चरणों में बांटा है विवाह। कौन से चरण हैं? सगाई, विवाह और गौना। आपने ये तीनों नाम सुने होंगे। प्रथम चरण में, तीसरे चरण तक आने के बाद वो अपने पति के घर जाती है। गौने के बाद ही अपने पति के घर जाती है। पहले सगाई होती है, जब ऋतुकाल से पूर्ण होती है तब उसकी सगाई हो जाती है। यानी कि एक निश्चित दिशा मिल गई, वर को भी और वधु को भी। तो क्या होगा? भटकाव कम होगा। आज जो समस्या है ना भटकाव की, ये भटकाव कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसका चिंतन एक स्थिर रहेगा कि हाँ मेरी वधु, मेरा वर, इधर उधर बहुत सारा भटकाव नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा उसका कारण है आयु ये रखने का। तो प्रथम चरण से ही मानसिक आलंबन मिल जाता है और दूसरे और तीसरे चरण में उसे शारीरिक आलंबन मिल जाता है, जिससे कन्या की रक्षा भी स्वतः ही हो जाती है। दूसरे चरण में विवाह संस्कार होता है, उसको घर नहीं भेजते, विवाह करते हैं, यानी कि अब संस्कार हो गया है। जब तक वो उसका प्रशिक्षण का दौर चलता है, उसको गृहस्थ में कैसे जाना है, ये उसका प्रशिक्षण का दौर होता है। कैसे रहना है, कैसे पूरा गृहस्थ संचालन करना है, ये विवाह से गौने के बीच। और फिर जब उसकी परिपक्वता आ जाती है, जिसको आप मैच्योर कहते हैं, तब उसका गौना आता है। तब उसका गौना होता है, वो अपने परिवार में जाती है, ससुराल में गृह संचालन करती है और गृहिणी हो जाती है, यानी कि परिवार का केंद्र बिंदु बन जाती है। अब वर्तमान समय में समस्याएं क्या है? वर्तमान समय में कन्या, परिवार और कानून जल्दी विवाह के विरुद्ध में है। तीनों के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, जैसे पढ़ाई, व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता, करियर, ये सारे और संविधान भी। लेकिन शास्त्र और परंपरा की दृष्टि से इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विवाह की आयु का कानून 100 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस कानून को बनाने वाली सरकार अंग्रेज थी। इस कानून के प्रशंसक जो थे वो भी अंग्रेजी पढ़े लिखे थे। आज भी हम करते हैं, तो इसी कारण करते हैं उसकी प्रशंसा। उस समय, जिस समय ये कानून बने, उस समय भारतीय ज्ञान, संस्कृति, शास्त्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था और उनका तिरस्कार किया जाता था। फलतः भारतीय शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन भी रुक गया था। आज वैसी स्थिति नहीं है। आज जो संख्या यहाँ बैठी है उसकी आस्था के अंतर्गत आई है। तो हमें हमारा विचार भी विवाह को लेकर शास्त्र की दृष्टि से करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? इस बात की यदि परवाह न की जाए तो लोगों को हानि तो अवश्य पहुंचेगी, जिसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। शास्त्र हमेशा प्रकृति के नियमों को प्रतिपादन करता है और उसके गुण धर्मों का विश्लेषण करता है, परंतु मानव उसका अर्थ अपने हिसाब से करता है या आंखें बंद कर लेता है। हम जिसे स्वतंत्रता कहते हैं वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता, और उसका बहुत नुकसान हम भोग भी रहे हैं। और वर की आयु की हमने चर्चा की थी। वर की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण होने के बाद, यानी कि 25 वर्ष, ये आयु हम वर की मानते हैं। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं विषय यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विषय पूर्ण करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।